ભગવાને કહ્યું એક બહુ સરસ મજાનું સૂત્ર છે, ન સમુદ્ર મધ્યે, સમુદ્રની વચ્ચે, ન પર્વતાના વિવરમ પ્રવિશે, પર્વતની કોઈ ઊંચા પર્વતની કોઈ ગુફામાં સંતાઈ જઈશું, સમુદ્રની નીચે અંદર દરિયામાં છુપાઈ જઈશું. ન વિજતી જગતી પદેશો યથ મુચ્ચેય કમ્મ વિપાક. એવો જગતનો કોઈ પ્રદેશ નથી કે તમે સમુદ્રમાં છુપાઈ જાઓ, પર્વતો ઊંચા પર્વતની ગુફામાં સંતાઈ જાઓ, પણ આ જગતની અંદર એવો એક પણ પ્રદેશ કે સ્થાન નથી ત્યાં જઈને આપણે છુપાઈ જઈએ ને કર્મના ફળ આપણે સુધી મળે. કર્મ અને કર્મના ફળ, કર્મ આપણે પોતે કર્યા છે અને એના ફળ આપણે ભોગવીએ છીએ. એના માટે બીજી કોઈ હસ્તી કે સત્તા કે ભગવાન જવાબદાર નથી. તો એ કર્મ જે આપણે કર્યા છે એને જડમૂળથી દૂર કરી શકીએ અને એના વિપાકમાંથી બચી શકીએ અને સંપૂર્ણ નિર્વાણ પરમ મુક્તિ સાધી શકીએ એની અનુપમ સાચે સાચ જેને કહીએ એવી સાચુકલી એવી જગ્યા આપણને ભગવાન બુદ્ધિ આપી. અને એ કામ ખાલી મનુષ્ય જીવન જ કરી શકે છે. મનુષ્ય જીવનથી બીજું કોઈ જીવનમાં આ સાધના નથી થતી. ઇવન દેવો અને બ્રહ્માઓ પણ એટલા સુખમાં ચૂર હોય છે કે એમને આ સાધના મુક્ત થવાની સાધના થતી નથી. નીચેના જન્મોમાં તો એ પ્રજ્ઞા જગાવી અંતર્મુખી થઈ અને આ કર્મોમાંથી મુક્ત થવાની એમનામાં શક્તિ જ મળી નથી. એકમાત્ર મનુષ્ય છે, એકમાત્ર મનુષ્ય છે જેની અંદર આ શક્તિ સુસુપ્ત રીતે મળેલી છે. આ શક્તિને કેમ વિકસાવી અને દુઃખોથી મુક્ત થવું એ વિદ્યા આપણને ભગવાન બુદ્ધે શીખવી. તો અસંખ્ય એવા લોકો દુઃખ મુક્ત થઈને અનંત બન્યા. આપણે પણ બધા થઈ શકીએ. એવું નથી કે એના માટે કોઈ ખાસ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ. તો આ જ્ઞાન આ ભગવાન બુદ્ધે આપ્યું અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી ચાલી આવ્યું, વાક્ય સુધી આવ્યું અને આપણા પરમ પૂજ્ય ગુરુજી સુધી આવ્યું. આપણે બધાને એ વિદ્યા શીખી અને કેટલા દુઃખોમાંથી આપણે અત્યારે પણ મુક્ત થયા છીએ. જીવન કેટલું સુખમય, જીવન જીવવાની કળા આપી. જેને જીવન જીવવાની કળા મળે છે એને મળવાની પણ કળા પ્રાપ્ત અને એ સાબિત કરી બતાવ્યું. સાધકજી એમનું ઓપરેશન થઈ ગયું હતું, આઈસીયુમાં હતા, અત્યંત વેન્ટિલેશન પર રાખવા પડે, બધું જ થયા કરે પણ એમના મોઢામાંથી કંઈ ફરિયાદ ના આવી કે મને આ દુઃખી છે કે મને આ બધું લગાવવાનું ગમતું નથી. એ બધું થયા કરે છે. એ તો પોતે અંતર્મુખી જ સતત રહ્યા. અને જ્યારે પૂછીએ કે તમારી અંદર સજાગતા છે તો સંવેદનાનો અનુભવ કરો છો, અનિત્ય બોધનો અનુભવ કરો છો. आप सब गुजराती समझते हैं? गुजराती कुछ समझेंगे लेकिन कुछ हिंदी में गलत पहले से बोल से तो अभी बाकी का हिंदी में बोला कोई बात नहीं, गुजराती लोग समझेंगे. तो उन्होंने आज जिए तब तक वो अंतर्मुखी रहे, अपनी संवेदनाओं के साथ सत्य के साथ ही रहे और उनके मन में बस साधक ब्रह्मसिंधु बाड़ा सेंटर वो साधक ही रमते. ये गौतम भाई कैसे, ये पुरुष कैसा है, ये वो मेरा साधक कैसा है, उसको बहुत तकलीफ थी. अभी उसमें से बाहर आए नहीं, अंत तक वो सोच रही थी. कल जब उन्होंने शरीर छोड़ा, शांत हुआ, उसके पहले भी पीयूष क्या थी, पीयूष जी ने बात किया उनसे 10 बजे. आपको सजागता तो है नहीं, आप क्षमता में तो हैं, अंदर की पूरी सब होने लगाए અને કે हाँ एकदम हर एक बात का जवाब दिया. और जब कहा कि आपके सब धर्म संतान मैत्री कर रहे हैं, संतान भी कर रहे हैं, कहीं 12 में संतान भी लोग हैं, तो ऐसा और ये सब आशीर्वाद कितनी सजा. तो इस मृत्यु को गुरुजी ने समझाया था. ऐसा जो मृत्यु हो जिसका हो उसको मंगल मृत्यु देते हैं. दुखद मृत्यु नहीं, दुखद अवसान नहीं, मंगल अवसान, मंगल मृत्यु. और भगवान गुरुजी ने कहा ऐसा मंगल मृत्यु जिसका होता है उसका तो उत्सव मनाना चाहिए, मृत्योत्सव.
तो आज हम इकट्ठे हुए हैं कोई दुखी होने के लिए, व्याकुलता ऐसे प्रसंग के लिए नहीं थे। हम मंगल मृत्यु का उत्सव मना रहे हैं, सब बड़े उत्साह के साथ। ऐसी मृत्यु जो मरता है वो सचमुच मरता नहीं, उसकी भौतिक काया गई, लेकिन धर्म काया हम सबके विषय में है। और मुझे हमेशा हम बात करते थे, अब तो हमारी उम्र हो गई, मैं भी 90 ईयर्स ओल्ड हूँ और ये 93 के थे, तो हम कभी कभी बात करते रहते थे। देखो अब तो जाने का समय नहीं रहा है, हम दोनों में से कोई पहले जाएंगे तो दूसरा जो है ना उसका भी काम उठाएगा। अभी हम साथ में मिलकर धर्म का काम करते थे, तो मैं मेरा पार्ट करती थी, वो अपना पार्ट करते, बीच गया काम बंटवारा कर दिया था। अभी उनका काम भी मेरे जिम्मे है। मुझे और बल से धर्म का काम जब तक जीऊंगी, एक एक प्रति क्षण में प्रसन्नता से, व्याकुल होकर नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं होगी कि वो मेरे साथ नहीं। अभी भी महसूस कर रही हूँ धर्म की तरह मुझे, वो तो मेरे साथ है, मैं अलग नहीं हूँ। और आप भी कोई ऐसे नहीं समझना हम सावला जी के बिना, सबके अंतर में वो बसे हुए मुझे मालूम। तो सावला जी के बिना हम अनाथ हो गए, अभी हम धर्म का कौन मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा किसी को भी नहीं समझता। मैं हूँ, मेरे साथ सावला जी हैं, आप सब आप सबका इतना सपोर्ट मिल रहा है और मिलेगा मुझे मालूम है, बताइए तो मेरे धर्म का काम आखिरी समय तक मैं और जोश से कर सकूं। और इसलिए आज हमने संविधान किया है कि हम सबको धर्म का बल जगाना है। जिसके मुँह से देखो सावला जी चले गए, हमको तो उनकी बहुत जरूरत थी, तो चले कर गए, वो तो धर्म का एक छोड़ कर ही गए हैं। और हमें डबल जोश चलेगा कि उनको श्रद्धांजलि अगर देनी है, तो हम प्रमाद में जो जीते, आज तो सुबह की साधना छूट गई, आज तो शाम की छूट गई, ये नहीं करना है। सभी हम उनको श्रद्धांजलि देनी है, तो सब हम इकट्ठे होकर आज प्रण लेंगे कि हम दोनों टाइम हमारी साधना को मजबूत करके बहुत ही साधना में प्रगति करेंगे, हम खुद करेंगे, दूसरों को भी ये प्राप्त करने में सहायता करेंगे। तो इस अभी हम संविधान क्यों कर रहे हैं, महोत्सव जो है, तो इसलिए संविधान का क्या महत्व है? सबसे बड़ा महत्व संविधान का है। अगर महोत्सव सेलिब्रेट करना है तो संविधान अवश्य देना है। सावला जी को संविधान बहुत ही हर शिविर में, चाहे 10 दिन का हो, चाहे 45 का हो या और लंबा, तो उसमें जो भी भिक्षु बनते जी आते थे साधना में बैठे, तो अंत में जब शिविर पूरा होता था तो संविधान जरूर 12 सेंटर पर होता था, और इतनी अच्छी तरह से सब मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से होता था। तो संविधान का महत्व क्या है वो जरूर एक तो बनते जी तो समझाएंगे हमको, मैं जितना जानती हूँ थोड़ा सा मैं आपको कि भगवान बुद्ध के समय कोई छापने की पुस्तकें, अभी जैसे हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, टेप कर रहे थे, पुस्तकें छपाते हैं, उस समय ये ऐसे कोई साधन नहीं थे। तब जो भिक्षु थे, अनंत भिक्षु, वो भगवान की वाणी का उपदेश का अक्सर असर, ये तो जानते ही, अक्सर असर कंठस्थ कर दो। तो पूरा त्रिपिटक है ना, उसमें विनय पिटक है, सुत पिटक है, अभिनव, ये तीनों पिटक है। तो कोई विनय पिटक कंठस्थ करता, कोई सुत पिटक, कोई अभिनव, कोई पूरे त्रिपिटक कंठस्थ मन कैसा, एक तो और ऐसा भी शब्द है वो बदलता नहीं था। इतना अक्सर उन्होंने उस समय से भगवान बुद्ध के बाद 8 महीने के बाद ये संगायन हुआ, तब उन्होंने सब प्रण लिया कि हर गुरु अपने से एक शिष्य ऐसा तैयार करेगा जो सारा भगवान की वाणी कंठस्थ हो। इस तरह से संगायन, आज संगायन के 100 वर्ष के बाद संगायन माने अलग अलग देश के भिक्षु मिलते थे और भगवान की कंठस्थ की हुई वाणी का संगायन करते थे। तो कोई बात कहीं भी फर्क नहीं आता, कोई चाइना से हो, कोई ताइवान से हो, कोई बर्मा से हो, श्रीलंका से हो, वो जब कंठस्थ संगायन करते थे तो अक्सर सब
फर्क नहीं आता था। तो इस तरह से भगवान की शुद्ध वाणी को संभालते संभालते आज 2500 वर्ष के बाद हमारे पास वाणी शुद्ध रूप में आएगी। इसलिए हम उसका जब हम अभ्यास करते हैं तो उसका परिणाम भी प्राप्त करते हैं। मैं ही अपनी बात करूँ तो मेरा इतना गुस्से चिड़चिड़ापन का ऐसा स्वभाव था और डर को बहुत मरने का तो बहुत डर था। आज से 40-50 साल के बाद की बात। अगर मुझे पहले की बात अगर मुझे धर्म न मिलता तो मैं आज दुख का पिटारा होती और जिंदा होती कि नहीं वो भी पता नहीं। पर धर्म ने मुझे आयुष्य दिया है। मैं 90 ईयर्स की हूँ और सावला जी को भी बहुत इच्छा थी मैं 100 ईयर्स का हूँ ताकि मेरे एक एक दिन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे। अब वो चले गए क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है। जैसे मैंने कहा न सबुद्ध बचे न पबतारो विवरम प्रविशे न विजति जगती ऐसो प्रदेशो यम मुंचती कम। तो इसलिए हम कहते हुए कि भगवान ने कहा कि वो संघ ने कंठस्थ किया धर्म को वाणी को भी और साधना विधि को तो आज हमको मिले। तो मैं इन संघ का कितना उपकार है कितना उपकार है। अगर संघ अगर कंठस्थ न करता तो हमें धर्म कैसे मिलता। सारी दुनिया में अंधकार ही अंधकार अविद्या का। तो इस तरह से हमें धर्म मिल रहा है। तो ये संघ भगवान ने कहा जब तक संघ दान होता रहेगा संघ को हम संभालेंगे तब तक धर्म चिरस्थायी रहेगा। जब संघ दान देना बंद होगा तो धीरे धीरे धर्म भी लुप्त हो जाए। ये अंधश्रद्धा की बात नहीं क्योंकि आज सुनोगे आपके इनके मुख से पारायण इतना गुंजारा करके पारायण करते हैं। ये धर्मवाणी संघ संभालते हैं। इसलिए हमें एक व्यक्ति नहीं जो पूरे संघ के प्रतिनिधि हैं तो उनको हम बहुत ही आदरपूर्वक आज धर्म भोजन दान किए। अब सब जीवनदान करेंगे और उनसे मेरी प्रार्थना है कि हम पारायण आपसे सुने। आप पहले सुनेंगे या पहले संविधान करेंगे?